Just before beginning and welcoming our speaker today, see, this particular month is the season 7, and I just thought, no, let's do a little recap of what we have done so far during the year. Season 1 again on retirement planning, season 2 was on confidence, season 3 was on presentation skills, season 4 was on international practice management, season 5 was on we call wellness, and then we also had a cricket, which we will have it again, and in between we had our conference, and in the season 6 especially we talked about digital interface with Manish ji, who is also present in the session, and then we had ICX, and we had a panel discussion with P2P platforms, which is emerging very well, and then on social media presentations and KBC. And then this was on Microsoft 365 and then international investing. And the last session was with Vikas on fundamental analysis, and followed by that, we have technical analysis. Friends, Mr. Shantanu Sen is a renowned personality, at least in Calcutta and beyond also. And he is the teacher whom I have learned my technical analysis way back in like 15-16 years back, and whatever little I know, I have learned it from him, and I am using it extensively. बहुत ही मतलब extensively use करता हूँ, जो चीजें थोड़ी बहुत आती है और जो मैंने सीखी है, पर इनसे जब भी हम लोग कुछ सीखते हैं या नया कुछ जानते हैं, whatever new things we learn from Shantanu sir, it has been very very encouraging and something एक नया insight हमेशा मिलता है. So I will request all of you to be attentive. Maybe let him share certain strategies, techniques first, and then maybe he can also share about his views about the markets, and also about maybe some stocks if he is willing to share. There are social media, YouTube channels which Shantanu sir is running. We will share it with you also. Even Shantanu sir, you can share, you can follow him. And they are really very very informative, और I think हम सबके जानकारी को बढ़ाने के लिए, knowledge को बढ़ाने के लिए, they will be very very helpful. So one person whom I know who is like the best as far as technical analysis is concerned, let's hear it from Shantanu sir. Over to you, sir. Looking forward to learn from you. Thank you so much for your presence and time. Thank you, Kanak ji. Good morning, everybody. Shubh Prabhat, everybody. तो कनक जी जैसे आज बोले हैं कि आज मेरे को कुछ टेक्निकल्स के बारे में बात करना है, तो होपफुली आप लोग ऑलरेडी टेक्निकल्स के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत आप लोग के पास है, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन इन द मार्केट, बाजार क्या है, इसके पहले थोड़ा सा टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा सा जानने की दरकार है, मेरे हिसाब से बोलना चाहता हूँ. व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ इज इट वर्क? ऑलरेडी आप लोग काफी मीडियाज में ये सब चीज देखे हैं, फिर भी मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट समझ लीजिए, छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए कि कैसे प्रोग्रेस करना है ये टेक्निकल्स के टूल्स वगैरह या टेक्निकल्स थ्रू करना है. और खास करके आप लोग जिस इंडस्ट्री में है, इतना साल आप लोग का एक्सपीरियंस भी है, तो as well as technicals. Now the technical concern, endless subject है, इतना बड़ा सब्जेक्ट, एक घंटा में आप लोग को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो सकता है, बट फिर भी एक आध टूल्स जो यूज करके आप टेक्निकल्स को ग्रिप में कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा आज हम इस आधा एक घंटा का जो सेमिनार है उसमें हम करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम लोग थोड़ा जो बात करेंगे टेक्निकल्स का, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एंडलेस सब्जेक्ट है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार का जो ग्रिप है इसको कैसे पकड़ में आता है.
तो पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क होता है। देखिए, आज हम लोग सभी जानते हैं कि बाजार के अंदर जो तेजी मंदी चलता है या मार्केट जो ऊपर नीचे करते हैं, sir, इसको ग्रिप में लाने हाँ, there is a request from audience. I know you can speak in Hindi, but little bit of English, no, some important things. If you can just repeat, repeat করে দিতে পারেন ভালো হবে. Okay. Okay. Actually, what about the technical analysis? Everything in the world, आप लोग जो काम करते हैं, in cases of, I think what the market behavior is going on in the futures, ये predict करना, this is very difficult for the at present situation. But some of the tools, some of the indicators, some of the systems are definitely carry करते हैं बाजार में कि ये बाजार का इंडिकेशन ये हो सकता है. That's why technical analysis is work very nicely and very powerful. What you can say कि फंडामेंटल्स में बाजार का डेप्थ समझ में आता है, कोई कंपनी का डेप्थ समझ में आता है. तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस is all about price action. What is price action? प्राइस जो चलता है, जो बाजार में जो प्राइस आप दिख रहे हैं, what you are watching at present price. At present price, कोई भी स्टॉक के अंदर, छोड़ दीजिए बाजार, कोई भी स्टॉक के अंदर जो भी प्राइस आप दिख रहे हैं, दिस इज अ कंपनी के अंदर जो गुड एंड बैड इफेक्ट है. There are various ways to develop a company. कंपनी के अंदर जो अच्छा और बुरा दो चीज है, ये दोनों ही चीज वो प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ. हाँ, यस. Background, I think there is some sound which is coming. Actually, I am in the office. রুমটা যদি বন্ধ করা যায়. Just a minute. Can I stop Yes, for yes. 1 minute? Yes. Friends, the immense knowledge and the wisdom which Shantanu sir carries is really huge, and I'm sure this 1 hour will be really less for whatever we can get. But I have experienced that many people, many teachers who takes maybe 3 hours, 4 hours, or maybe 10 hours, the whole delivery which he actually does, and he can actually do that in few minutes also. So that's the beauty of Shantanu. बोल के आए हैं. सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज. एक्चुअली आज ऑफिस है, इसलिए ऑफिस में आके ही बात कर रहा हूँ, तो हम ओपन स्पेस में थोड़ा है. ठीक है, थोड़ा वो चला लीजिए. तो नाउ इज ऑल अबाउट. कनक जी, हिंदी और इंग्लिश मिला के चलेगा ना? यस, हिंदी इंग्लिश में. ओके फाइन. तो कैसे टेक्निकल्स रिएक्ट करते हैं, ये हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि the behavior of the market is very difficult to predict, but some of the tools, one tools is like moving average, is one of the best so far indicators in the world. And this type of indicators gives you a robust return, something around 1990s. मैं बाजार में हूँ from 1990 से. But there are a lot of tools, lot of indicators मैंने follow किया है. But one of the best and reliable indicator in the market is concerned is moving average. Now, what is moving average? Moving average is a price, एक average. Moving average, जो average move कर रहा है. How it calculate? Like a 5 days average. That means a 5 closing price, last 5 closing price plus divided by 5. This is the average of 5 days average. And this is also 5 days moving average. That's why you can say
कि मैं कितना दिन का मूविंग एवरेज लूं, what is the standard. There is a no basic standard rules and regulation in the moving average, but sometimes we follow 13, sometimes we follow 30, sometimes we follow 20, but on an average 13 and 26 is a combination of moving average. You can predict a lot of for the market. Why 13? 13 is came from the Fibonacci number. What is the Fibonacci number? छोटा सा करके मैं बताना चाहता हूँ, 0 और 1 को याद रखिए, और 0 और 1 जैसे ही आप ऐड करेंगे तो उसका जो सम अप होता है उसका होता है 1, वो बगल में लिखिए. Now 1 plus 1 is 2. Now 2 plus 1 is 3. बगल में लिखते लिखते चलिए. Now 3 and 2 is 5. 5 and 3 8. 8 3 8. I think the sound was still there. If some of you have done RVCs, you will understand it more easily. I think many of us have already done it. Sir, you will have to unmute yourself. Yeah. Yes. Very sorry. Now this is 13 days moving average. Now how is it calculate? Last 13 closing price add कीजिए and divided by 13, और 13 days का मतलब है 2.5 week. अगर 5 days का ट्रेडिंग सेशन होता है तो उसके अंदर 13 days आपका एक मिड पॉइंट में आके रुकता है. तो एनी टाइम इन द मार्केट, जब भी आप बाजार को सोचेंगे कि बाजार एक महीना के अंदर, अगर आधा महीना के अंदर आप बाजार का व्यू ले रहे हैं, दैट्स व्हाई 13 डे में 13 मूविंग एवरेज, 13 एवरेज इज वेरी गुड फॉर predicting the market. Now how is it calculate and how is it work? Let us discuss with some chart. Can I share my screen? Yes, Shantanu. Yes. How is it? Niche share screen ache, you can just share. Share screen. Yes, share screen. Yes. This is a software. It's called Metastock software. I can tell you this is a technical analysis में आप जो देखते हैं, this is a chart for Nifty since 1994 and मैं zoom करता हूँ. This is a bar chart. It's called bar chart. Now every bar is in 1 day. Like कल का जो closing था 17/12/2021. एक बार मतलब 1 days
अगर आप ये टाइम फ्रेम को वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज अ वीकली चार्ट, दैट मींस 1 बार इज कैरी अ 1 वीक साइकोलॉजी. Now moving average from here is the indicator. You can calculate moving average properties and simple. This is the color of moving average. थोड़ा सा मोटा कर देता हूं बस. Now anything above moving average is good for the market, and anything below in the moving average not good for the market. Now specifically you can see the trend of the market. Moving average is also tells us a signal, gives us a signal whether the market is trending upward or whether the market is trending downwards. Now the situation is the moving slope of the moving average and moving average is in a downtrend. That's why आप कुछ भी बाजार में करो, कुछ भी बाजार में सोचो, ये ट्रेंड जब तक बाजार में स्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक ट्रेंडिंग नहीं होगा, तब तक बाजार के लिए मुश्किल है. नाउ द प्रॉब्लम इज हम लोग को कहां डिसीजन लेना है. फर्स्ट पॉइंट, consecutive 3 closing above moving average is positive, and consecutive 3 closing below moving average is negative. Since 1992 and 1994 from NSE, आप जो बाजार को देख रहे हैं, ये सिचुएशन बहुत बार अराइज हुआ है, और वहां बाजार को प्रेडिक्ट करना, सक्सेसफुली प्रेडिक्ट करना, ये 13 डेज बहुत ज्यादा काम करता है. नाउ वी हैव और एक मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम मैं लूंगा, व्हिच वन इज 26. व्हाई 26? बिकॉज अ 13 मूविंग एवरेज का डबल टाइम फ्रेम उसमें ज्यादा वेरी करता है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 26, simply 26, and this is also a baseline, main trend line, main trending indicators in this chart. Now कैसे ये काम करता है? जैसे मूविंग एवरेज आपका ब्लू और रेड है, ये ब्लू और रेड के अंदर आप जो चीज देख रहे हैं, यही अंदर बाजार का ट्रेंडिंग अपवर्ड और ट्रेंडिंग डाउनवर्ड हुआ है. तो फर्स्ट थिंग, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आया कि नहीं आया, ये देखना पड़ेगा. अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है तो दैट मीन्स मार्केट ट्रेंडिंग अपवर्ड और मार्केट के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटीज है. और अगर ब्लू लाइन के नीचे बाजार है तो बाजार का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के हिसाब से वो नीचे जा रहा है. नाउ ब्लू और रेड के अंदर जो आप देख रहे हैं, रेड है 26 डेज मूविंग एवरेज और ब्लू है 13 डेज मूविंग एवरेज. रेड लाइन हमेशा हम लोग को लॉन्ग टर्म डिसीजन में हेल्प करता है, और ब्लू लाइन हमेशा हम लोग को शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेने में हेल्प करता है. नाउ वी कैन से कि यहाँ पर हम लोग क्या डिसीजन लेंगे. पहला बात ये है कि ये जो ब्लू और रेड, यहाँ से थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश कर रहा हूं. तो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोला कि एनीथिंग अबव मूविंग एवरेज is good for the market, anything below the moving average not good for the market. Now trending, क्या बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या बाजार नीचे की तरफ आ रहा है. स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज का आप स्लोप देख रहे हैं, ये जैसे ट्रेंडिंग है, ये स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज टेल्स अस कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग में है. और जैसे कि मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे की तरफ है, इट टेल्स अस कि बाजार के ट्रेंड नीचे की तरफ है. That's why is very important कि आपको स्लोप समझना पड़ेगा मूविंग एवरेज. जैसे कि ये ऑकेशन में था, पीछे वाला एक ऑकेशन था जो यहाँ पर था. यहाँ पर देखिए, ना तो स्लोप ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स था, ना तो स्लोप ट्रेंडिंग अपवर्ड था. दैट्स व्हाई ये जोन को हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड लेस मार्केट. यहाँ पर कोई ट्रेंडिंग बात ही नहीं था. फिर बीच में ये एक जगह आया जब आफ्टर कोरोना यहां से जो राइज हुआ, इसके बाद देखिए मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो स्लोप ट्रेंडिंग अपवर्ड में था. दैट्स व्हाई यहां पर डिसीजन लेने में थोड़ा ठीक रहेगा और डिसीजन लेने में कोई तकलीफ भी नहीं होगा. लेकिन यहां डिसीजन लेने में तकलीफ होगा क्योंकि स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज
ना तो ऊपर था ना नीचे था। नाउ ये 13 का जो अहमियत है और 13 का जो कहानी है, ये थोड़ा मैं पीछे की तरफ जाके आप लोग को बोल रहा हूं। कंडीशन मैंने क्या बोला कि consecutive 3 closing above moving average is bullish and consecutive 3 closing below moving average is negative. Since 1994 मैं ये चार्ट्स को ट्रैक कर रहा हूं। आप लोग भी देख सकते हैं, यहां एक ऑकेशन था, लाइक यहां पर चले जाते हैं ज्यादा बैक टेस्टिंग। कैसे मूविंग एवरेज के थ्रू बाजार का साइकोलॉजी रीड होता है और वो रीड कैसे होता है। हम लोग को सभी मालूम है 2001 जो ट्विन टावर क्रैश हुआ था। मार्केट नोज एवरीथिंग, बाजार सभी जानता है, सब बाजार के अंदर क्या हो रहा है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू मूविंग एवरेज। कैसे? देखिए ये बार चार्ट है, बार चार्ट का जो क्लोजिंग बेसिस में है उसका जो राइट हैंड साइड का जो क्लोजिंग दिया था, फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दिया था यहां पर, डेट कब था 29/8। उसके बाद फिर कब क्लोजिंग दिया था 30/8। कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग हो गया मूविंग एवरेज के नीचे। उसके बाद थर्ड क्लोजिंग कब आया 31/8 को। नाउ अगर मैं यहां पर पॉइंट आउट करूं कि दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग बिलो मूविंग एवरेज, this is the second closing below moving average, this is the third closing below moving average। consecutive free closing moving average के नीचे दे दिया, इसका मतलब है बाजार के अंदर जो बेयरिशनेस है वो थोड़ा सा हावी है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट करेंगे, consecutive free closing below moving average, और अगर लोएस्ट लो तोड़ता है, लोएस्ट लो का मतलब ये कंसेक्यूटिव जो 3 दिन का जो क्लोजिंग हुआ है उसके अंदर तीनों लोएस्ट क्लोजिंग हमको मिला, और लोअर लो कहां मिला इस बार में। तो तीनों दिन के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट है 31/8/2001 को 1051। वेरी नेक्स्ट डे अगर 1051 तोड़ता है तो एज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या हम लोग सेल ले सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट कि ये इसके बाद 3/9 को, तो 3/9/2001 के बाद बाजार में एक प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया, यहां पर हम लोग सेल ले सकते हैं। यहां पर हम लोग सेल ले सकते हैं। उसके बाद बाजार का हालत देखिए, धीरे धीरे बाजार गिरते गया। नाउ दिस इज द डे, आप सब लोग को मालूम है 11/9/2001 इस तारीख हम लोग का 3:30 बजे बाजार बंद हुआ था, और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ये रिएक्शन आया था ड्यू टू ट्विन टावर क्रैश। नाउ द पॉइंट इज, क्या बाजार यहां से साइकोलॉजी अगर आप रीड करेंगे, क्या बाजार पहले से जानता था? देखिए एज पर द चार्ल्स डाउस थ्योरी, मार्केट नोस एवरीथिंग। प्राइस के अंदर जो बिहेवियर है, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग एक्सेप्ट नेचुरल कैलामिटी। दैट मीन्स अगर कोई भी सिचुएशन मैन मेड है, कोई भी डिसीजन अगर मैन मेड है, तो वो जानता है कि इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। दैट्स वाई ये जो
नेगेटिव व्यू उभर के आया था, there is a reaction. Now see the reaction power. 1550, 1050, and thereafter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. Within 13 days, it's 850. That means almost a 20% return in a 13 or 15 days, 15 trading days. ये आप बोल सकते हैं कि ये हो चुका है इसलिए आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, बट एज वी ऑल नो, समझ लीजिए कि ये हो चुका है, क्या ये दोबारा होगा? जब भी आप बाजार को प्रिडिक्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा बाजार को देखते रहिए। तो हमको क्या देखना है? इफ मार्केट का क्लोजिंग 13 के ऊपर आता है, तो 13 के ऊपर कब आया? यहां पर। वो कब था? ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है 13, ये यहां पर क्लोजिंग आया। जैसे कि यहां नीचे का क्लोजिंग दे के नीचे आ रहा था, अब ये जाके ऊपर में बंद हुआ। तो यहां पर एक क्लोजिंग हो गया, दो क्लोजिंग हो गया, तीन क्लोजिंग हो गया। Now it tells us it's a positive scenario, positive symptoms for the market. तीनों दिन का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? This is the highest point. That means you can mark with this line. And this is the point. If market index, you can take a long position. You can take a positive view in the market. उसके बाद क्या हुआ? After some 3-4 days, went up price. What is the highest point of that day? 823 and 923. Sorry. Now यहां से इसका जो ऊपर में चलना चालू किया, you can say कि मार्केट आप ट्रेंड रिवर्स होके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन इज देयर कि यहां पर slope of the sorry unmute किया कर दिया। slope of the moving average is also tells us कि बाजार की तरफ नेट में प्रॉब्लम हो रहा है। So you share the screen, it will come. Little bit of net issue was there. Now ना को आप देख पा रहे हैं अभी? नहीं, अभी ठीक है? नो सर। अभी yes, okay, there is some network issues there. तो स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज ये हमको ये बता रहे हैं कि अभी बाजार का ट्रेंड जो है थोड़ा ऊपर की तरफ चलना चालू किया। ना देखिए, ये जो दो मूविंग एवरेज के बीच में जो जगह है, दिस इज द जोन फॉर वैल्यूएशन। 26x is a long term moving average and 13 is an intermediate term moving average. 26 हमको बता रहा है कि बाजार का ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ चल रहा है, धीरे धीरे स्लोप चेंज हो रहा है। जब भी प्राइस 13 और 26 के बीच में आता है, 13 and 26 के बीच में, this is the zone for valuation. Now you can take your position as you think.
जब जब ये नीचे आया है उसके बाद पुल बैक हुआ है, फिर चला ट्रेंडिंग 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 ट्रेंडिंग। नाउ जो जर्नी स्टार्ट हुआ था 925 से, वो अभी तक चल रहा है, देयर इज अ नो इशू। ऐसे करके आप टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज को यूज करके स्पेसिफिकली 13 और 26 का जो एवरेज है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन को आप गोल्डन कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, कभी भी आपका ये यूज कर सकते हैं। नाउ वी कैन से वो तो हो चुका है, इसलिए आप बोल सकते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में आप हिस्ट्री जितना शेयर करेंगे, हिस्ट्री में जितना इसका बिहेवियर क्या हुआ तो वो देखेंगे, उसी हिसाब से ही आपका एक्सपीरियंस गैदर होगा। सबको मालूम है 2002-4 ये जो समय था जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होके ऊपर की तरफ जा रहा था। 2004 जब वाजपेयी गवर्नमेंट था, उसके बाद बाजार का रिएक्शन आया था। सबको मालूम था कि आफ्टर द रोड कंडीशन इन एवरी सिटीज जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने किए थे, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी को एक साथ जोड़ दिए थे। उसके लिए जो सिचुएशन हुआ था, एक जगह से जाना, एक सिटी से दूसरा सिटी में जाना, खास करके दिल्ली, मुंबई एंड कैलकाटा, इतना बढ़िया काम किए थे। उसके बाद सबको मालूम था कि फिर बीजेपी 2004 में आ सकता है। पर मार्केट क्या सोच रहा था, व्हाट इज द, आप लोग ही बता पाएंगे? मैं 2004 में लेके जाता हूं। दिस इज 2004। क्या हुआ था? This is your 13 days moving average, blue line. First closing below moving average. This is the second and this is the third closing. Now we can say कि यहाँ पर price behavior कुछ changes हो रहा है. This is the first time, this is second time, and this is third time. And what is the lowest low? The third bar of this pattern is the lowest low. That means 1793. You can say 1790. 29/4/2004, यहां पर आपका सबसे नीचे का क्लोजिंग और लोएस्ट लो था, ये इस बार में तोड़ा था। उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर पुल बैक किया, लेकिन वही क्लस्टर में जाके ऐड हुआ। कंसेक्यूटिव फ्री क्लोजिंग तो नहीं दे पाया, फिर बाजार धीरे धीरे नीचे आया और आखिरकार ये बार अपीयर हुआ 17th में, ब्लैक मंडे 17th में 2004, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पर बाजार क्रैश हुआ था, बाजार सेलिंग सर्किट लग गया था। बट क्या उसके पहले आपके पास ये नॉलेज था कि ये बाजार गिर सकता है? हाँ, डेफिनेटली। सिम्टम्स जो था वो यहाँ पर ही हम लोग को दिख गया था। एंड देयरआफ्टर अ लॉन्ग डे, लॉन्ग टाइम, मार्केट इसके ऊपर उभर के आ ही नहीं पाया था। करीब 2-3 महीना लग गया था। तो मई 2004 कंसेक्यूटिव फ्री क्लोजिंग बिलो मूविंग एवरेज, लोएस्ट लो तोड़ के बाजार जो कहानी किया 17 मई को, वो यहीं पर मालूम चल गया था। ऐसा बहुत सारा ऑकेशन है। आप अगर बोलेंगे कि बाजार के अंदर ये ऑकेशन क्या एक बार दो बार हुआ था, देयर आर सेवरल टाइम। जब बाजार में ये कहानी हुआ था, ये बाजार में
आप लोग को दिख भी सकता है और आप विजुअलाइज भी कर पाएंगे। खाली फील करना चाहिए स्टैंडर्ड एक मूविंग एवरेज को यूज करके। तो दैट्स वाई मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 और 26 का जो कॉम्बिनेशन है इसको दिमाग में रख के नेक्स्ट कभी भी बाजार जब ट्रेंडिंग होगा उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर ध्यान रखिए और नियम एक ही रखिए। हो सकता है कोई भी इंडिकेटर 100% राइट नहीं होता है, 3-4 दफे आप लोग का फेलियर भी होगा, बट दैट डजंट मीन्स कि वो इंडिकेटर वो मूविंग एवरेज काम नहीं होता है। 100% कोई भी राइट नहीं होगा, 70% राइट हो सकता है। दैट्स वाई मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग बिलो 13 DMA खराब है, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग अबव मूविंग एवरेज पॉजिटिव है। दिस इज द थ्योरी आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। नाउ जितना भी बड़ा बड़ा फॉल हुआ है या छोटा मोटा जो भी ट्रेडिंग रेंज बनता है, आप यकीन मानिए बाजार के अंदर आप देखिए आप लोग को पता चल जाएगा। लाइक 2008 सबको मालूम है, 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस के बाद बाजार गिरा था। क्या हम लोग को ये सिग्नल मिला था ये सेम इंडिकेटर यूज करके? चलिए देखता हूं 2008, 2004 चला गया, अब 2008 में आता हूं। Now this is 2000 from 2007 to 2008. This is the rally. ये रैली में ये बना था 6350 जो टॉप बना था 8/1/2008 6350। वहां के बाद सीधा बाजार वर्टिकल फॉल हुआ था। जस्ट अ प्लेन एंड सिंपल। आपको क्या देखना है? आपको देखना है मूविंग एवरेज के नीचे कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग होना चाहिए और उसका लोएस्ट लो तोड़ना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग बिलो मूविंग एवरेज 15/1/2008। दिस इज द फर्स्ट क्लोजिंग below moving average. This is the second closing and this is the third closing. Now in here the day second is the lowest low bar, day 2. That means the consecutive 3 closing below moving average 16 जनवरी का जो लो बना था वही लो लोएस्ट लो बन गया था। That means 5825. Now the point is everybody is thinking 6350 में तो नहीं बेचा हूं, 5800 में क्या बेचे? बट पॉइंट इज आप लोग के पास जब सिग्नल आया था आप क्यों यूज नहीं करेंगे? ठीक है 500 पॉइंट नीचे आप बेच रहे हैं, बट आपको सावधान तो रहना चाहिए, एक्सपोजर तो नहीं होना चाहिए। चलिए हाफ तो लिक्विड कीजिए। ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोग को आएगा, नेक्स्ट टाइम भी आएगा। हो सकता है कि ये जो बुल रन चल रहा है इसके बाद भी आएगा। तो नाउ द पॉइंट इज इसके बाद क्या हुआ? वेरी नेक्स्ट डे उसके बाद 18 जनवरी को ये लोएस्ट लो पॉइंट तोड़ा था। दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ लोएस्ट लो, ये तोड़ा इस बार। नाउ यहां पर आप बेच सकते हैं, इधर टाइम मिला था। दैट मींस बिलो 5800 उसी दिन आपको नीचे में और वेरी नेक्स्ट 2 डेज के अंदर बाजार इंडेक्स 4448। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट गॉन। थोड़ा सा हम आपको डिटेलिंग में बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए अगर आप ये रेड लाइन को हटा 28 को हटा ही दीजिए, आप खाली प्लेन एंड सिंपल 13 के ऊपर प्ले कर रहे हैं। The logic is consecutive 3 now in here यहां पर भी एक कंडीशन बना था, फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग एंड थर्ड क्लोजिंग।
बट लोएस्ट लो नहीं तोड़ा था, बाजार ऊपर चला गया। अगर यहां पर लोएस्ट लो तोड़ता ना तो थोड़ा सा तकलीफ बाजार को उठाना पड़ता। फिर के पॉइंट एराइज हुआ, फर्स्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग एंड थर्ड क्लोजिंग, which over which were first, फिर लोएस्ट लो। क्राउड साइकोलॉजी के अंदर, पब्लिक के अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है, बाजार गिरने से लो पैसा मिलेगा। दैट मीन्स एवरी डे इज अपॉर्चुनिटी टू बाय। यहां पर जो सिस्टम बन रहा है, नीचे में डिमांड क्रिएट करने के लिए पब्लिक आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज, आप क्या हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो 3 दफे ऐसा करने के बाद दिस इज द टाइम, फिर एक दफे आया था बाजार। क्या हुआ, फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग, उसके बाद लोएस्ट लो नहीं तोड़ा, फिर ऊपर चला। दिस इज द सिम्टम्स, दिस इज द मार्केट के अंदर था। बिकॉज तीन चार दफे नीचे आया, लोएस्ट लो नहीं तोड़ा, बाजार वहां से बाउंस बैक किया, हम लोग को अच्छा पैसा मिला। इस बार क्या हुआ, फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग, फिर लोएस्ट लो तोड़ा है, सीधा बाजार नीचे। क्या कोरोना जो आने वाला था, बाजार को पता चल रहा था? सबसे मेन पॉइंट ये है, 2020 में सबको मालूम था, सब देखे थे कि वर्टिकल फॉल, और खास करके आफ्टर द कोरोना मार्च में जब बाजार बॉटम कर रहा है 7500 के आसपास, क्या हम लोग के पास कोई सिम्टम्स था कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर मैं 2 चीज का कहानी आप लोग को बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग कब खरीदते हैं, या तो वैल्यूएशन काफी गिर जाता है तभी हम लोग खरीदते हैं, या तो बाजार ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चल रहा है तब आप खरीदते हैं, कि हमको मोमेंटम ट्रेड करना है, मोमेंटम चेज करना है। तो ये दोनों सिनेरियो में कोई भी एक सिनेरियो एक बायर के लिए अट्रैक्टिव होता है। या तो आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन इज वेरी चीप, देन आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कैसे करके, आइए हम देखते हैं कि इस बार का जो कोरोना इफेक्ट था, उस टाइम बाजार क्या बिहेवियर किया था, क्या हम लोग को सिग्नल कुछ मिला था? दिस इज द डेली चार्ट। दिस इज द सिनेरियो, फर्स्ट क्लोजिंग below moving average, second closing below moving average, and this is the third closing. And what is the price? 11,779. पकड़ लेता हूं 11,700, 11,700 आपको बेचना है विथ फिल्टर। तो यहां पर आपका फिर नेक्स्ट डे नीचे आया, It seems the network is gone again. Yeah, Samsung share is still there. Friends, as we have seen, this is a very, very powerful tool wherein know if the market is below the 13-day moving average, 3 consecutive days, and after that, if it breaks the lower low, that's the indication that the market is low. We can also see that I think we also on 17th of November 2021,
and now in last 1.5 months also, whatever the situation is. तो ये सिचुएशन था। क्या हम लोग को मालूम चला था बाजार उठेगा? सबको पैनिक था, 7,500 में लेना नहीं है, बाजार 6,000 हो जाएगा, 6,500। दिस इज द सिनेरियो उस टाइम था। देखिए तो ये सिग्नल आपको कुछ बोलता है कि नहीं? तो फर्स्ट टाइम, हाँ जरूर, यहाँ पर आपको 7,500 में शॉपिंग करने को नहीं मिला था, बट यहाँ तो आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है 8,500 के आसपास। तो 8,500 के पास 8,500 से लेके 9,000 कंसोलिडेशन, 1 2 3 क्लोजिंग अबव क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट हाई क्रॉस किया, धीरे धीरे प्राइस 10,000 पहुंच गए। नाउ द पॉइंट इज, जैसे ये मूविंग एवरेज इज अ ट्रेंडिंग इंडिकेटर, इज अ ट्रेंड फॉलो इंडिकेटर। दैट मींस बाजार का जब कोई ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड होता है तभी इसमें काम आता है। आई थिंक फुलबामा कांड जब हुआ था उस दिन का बाद वाला दिन, कनक जी आप एक सेमिनार अटेंड किए थे मुंबई में, यू कैन रिमेम्बर इट। उस सेमिनार में मैं बोल के आया था 65 days RSI, एंड मैं हर सेमिनार में बोलता हूं इज अ वेरी पावरफुल टूल्स अगर आपको टॉप और बॉटम पकड़ना है। बिकॉज बाजार जब गिरता है तब तो ट्रेंडिंग इंडिकेटर ऑल आर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, बाजार जब बढ़ता है तो ऑल ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो ऑब्वियसली उस टाइम आप लोग को ये नहीं मालूम चलेगा कि बाजार कब गिरेगा। बट इफ यू हैव अ इंडिकेटर लाइक RSI, and that is 65 days, not 14 days by default, you can say आप लोग को पता चल सकता है कि बाजार कहीं टॉप के आसपास तो नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है बाजार का टॉप और बॉटम, बट कहीं आसपास में है क्या? Look at the scenario. This is price and this is RSI, relative strength index. Now you can change this RSI, 14 days RSI, time frame is 65, apply, okay. Now see, this RSI is moving. What is RSI? Relative strength index. ये 70-30 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है because of 65 days. The extreme scenario, if price above 65, if 65 days RSI goes above 65, very very cautious approach लेना चाहिए, because ये अभी लॉन्ग टर्म में ओवरबॉट जोन में आ चुका है। एंड वाइस वर्सा, if 65 days RSI below 35 and 30, this is the actual valuation zone as per the chart is concerned. Now this is the scenario, this is the 30 and RSI create a double bottom condition. And what is the date? This is the date. You can see the date and the price, 7,800 and this is 7,500. That means your approach in the bottom कि भाई अभी बाजार वैल्यूएशन ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे आपके पास 100 रुपया है, 25 रुपया तो डालना ही चाहिए बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। एंड वही बॉटम आज जो आप 18,000 देख रहे हैं,
तो सेम सिनेरियो, इस बार क्या हुआ प्राइस, ये प्राइस अब कहां पर है, अबव 65, जो प्राइस आरएसआई गिरा था above 65 and 70 के बीच में, that means we are absolutely a very high valuation zone में पहुंच गए। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट little bit risky, that's why वहीं से बाजार बार बार गिरा है। लास्ट टाइम एक बार जो छोटा फॉल आया था इधर से आया था, फिर यहां से फॉल आया था, अभी जो फॉल चल रहा है। तो दैट्स वाई मैं दो इंडिकेटर एक छोटा सेशन के अंदर, एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, हर चीज को और बारीकी से समझना चाहिए, बट अगर आप इतना दिमाग में रखेंगे कि एक 13 मूविंग एवरेज प्ले करने के लिए फॉर ट्रेंडिंग मार्केट एंड RSI relative strength index with a 65 days RSI for the long term, not 14 days RSI. If 65 days RSI is greater than 65, be careful about market or any stock. And if 65 days RSI less than 35, be careful for buy, not fearful. The valuation is concerned is little bit okay. That's why ये दो इंडिकेटर आप यूज करके नेक्स्ट कमिंग जो तेजी चलेगा या मंदी आएगा उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ ओवर टू कनक जी, आपको अगर कुछ बोलना है तो मेरा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम था। Thank you so much, Shantanu sir. It was really nice. I think there will be a lot of questions from our participants. एक जो अभी का लेटेस्ट ट्रेंड जो है, एक चीज which you mentioned, वैल्यूएशन क्रिएट होता है अगर 13 डे और 26 डे एवरेज के बीच में रहता है और बार बार हिट करता है। तो आई थिंक करेंटली आर वी इनटू दैट सिचुएशन समथिंग, अगर वो चार्ट अगर आप दिखाएं। Exactly. I think it's a good time, slowly and gradually people can buy and accumulate. Absolutely. In the weekly chart, you can see clearly. This is your time frame. Yes. And RSI is also somewhat around 40-50 cholche. It's something exactly. In the daily RSI, it's also a 50 zone. That means there is a little bit chance कि ये और 45 के आसपास आ सकता है, but valuation is now cheaper than this area. Valuation is created, friends, and in our groups, no, we share this 13-day moving average and RSIs in a form of a bulletin. I shared with you also the last one, which was there. So I think people here are quite aware of these two things, and with your sharing the way beautifully Shantanu sir has shared, I think things have become very clear for me also now, and for most of us. Any questions or anything like that which people would like to ask? Any stock or any sector specific you are recommending, Shantanu sir? यदि मैंने एनीथिंग जो आपको लग रहा है अच्छा ज्यादा चलना चाहिए, जैसे अभी फार्मा और आईटी चला, अभी क्या लग रहा है अपने को? फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के भी यही क्वेश्चंस होंगे जैसे फार्मा और आईटी, और व्हाट इज द सेक्टर व्हिच वी कैन मे बी लुक फॉरवर्ड? ESG is a sector which has actually emerged very well. Sir, you are mute. Sir, mute, unmute करते हो? Please unmute. Yeah. There is a network issue, बीच में network issue हो रहा है। Mutual fund distributors may not ask for stock specific suggestions, but maybe sector specific या कुछ अगर आपको अगर देखना है तो आपको पहले ये सोचना चाहिए, सॉरी, देखिए पहले तो ये बात है कि दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन विथ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बिकॉज ऑफ इट्स अ सोशल मीडिया, इट्स अ एजुकेशनल पर्पस। यू कैन से TTML stock. Somebody is asking TTML.
जरूर पूछ सकते हैं, आप लोग पूछते रहिए। कनक जी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं तो थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी जो सेक्टर स्पेसिफिक का बात बोलना चाहता हूँ, वो सेक्टर जो है आईटी इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इन कमिंग 2 to 3 years बिकॉज ऑफ अभी मुंबई जाना नहीं पड़ता है, सेमिनार हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन हुआ है, ये सिचुएशन के ऊपर से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटली हम लोग कितना इक्विप्ड हो रहे हैं। जो लोग पहले सोच भी नहीं पाते थे कि मैं कैसे सेमिनार होगा डिजिटली और कैसे सब कुछ होगा, बदल जाएगा बैंकिंग सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम, आप लोग का सिस्टम, इतना जो डिजिटल चेंजेस आ रहा है और काफी सारा चेंजेस होगा। दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा ध्यान रखिए। केमिकल इंडस्ट्री जरूर नेक्स्ट रन में चलेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। एंड अ न्यू जनरेशन स्टॉक, उसमें कुछ ध्यान लगाइए जो आईटी रिलेटेड ही होगा। And now the next question is very interesting is TTML। 5 रुपया में तो कोई पूछता नहीं है, बट 170-75 में तो पूछता है। I am sharing you one stock. The name is MTNL. Very impressive chart. I don't know whether it is a next TTML or not, but the valuation, government or organization, company, maybe disinvestment candidate, बट टेलीकॉम के अंदर जो चीज चल रहा है, हो सकता है कि एमटीएनएल का चार्ट थोड़ा सा आप लोग रीड कीजिए। जिसको फंडामेंटल स्टडी करना है उसको कीजिए। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट चार्ट के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग चार्ट एमटीएनएल। एंड माय सेकंड स्टॉक मैं जो वॉच करूंगा वो है जुबिलिएंट इंग्रेविया। ये स्टॉक जुबिलिएंट लाइफ साइंस पहले आप लोग को बताए थे, उसी से ये स्टॉक डिवाइड हुआ है होके जुबिलिएंट इंग्रेविया नाम करके आया है। तो इस स्टॉक में मैं ध्यान रखूंगा नेक्स्ट बुल रन में। और स्पेसिफिकली रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ सेक्टर, लाइक हम ये बोल सकते हैं रियल एस्टेट एंसिलरी। लाइक देखिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको तो सीमेंट चाहिए, पहले वो चाहिए, चाहे इंडिया बुल्स बनाए, चाहे डीएलएफ बनाए, चाहे यूनिटेक बनाए, कोई भी बनाए, आपको सीमेंट तो चाहिए। तो सीमेंट के अलावा बिल्डिंग में और क्या क्या चीज दरकार है, एक कंसेप्ट वाइज ये सोचिए और वो स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। लाइक सेरामिक टाइल्स, पाइप्स, दीज आर द सेक्टर stock you can watch. PVC pipe, yes. To friends, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शांतनु सर जब भी आते हैं वो कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दे के जाते हैं, एमटीएनएल हो या जुबिलिएंट हो। पहले भी उन्होंने जो भी किया है, those stocks have really done well. So this is, I called this as a प्रसाद for the day. एंड सेक्टर जो उन्होंने बताया है वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैंने ऑल ऑफ यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव। मे बी सर इज देयर विद अस फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट्स एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस। सो आई थिंक गुरदीश जी, बट छोटे से सवाल पूछिए, शॉर्ट एंड क्विक आंसर्स टाइप्स, हाँ, सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट अ चांस। यस। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कनक जी, आप हमेशा ना नायाब कोई नो ही ढूंढ के जाते हो। थैंक यू सो मच। ये हमारे टीचर हैं शांतनु सर। तभी तो कह रहा हूँ, आप मतलब कोई नो लेके आना चाहते हैं सारी चीज। तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। मैं एक ये चीज पूछना चाह रहा था, जैसे अब हम ये चार्ट पे देखते हैं तो क्या इज इट पॉसिबल कि जैसे फंड्स के भी होते हैं, या हम वो अपने सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं वो बेटर है? देखिए, जो स्क्रीन में आप लोग के पास सॉफ्टवेयर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या अगर प्रोफेशनली कुछ अगर डेटा वेंडर से आप डेटा लेके ये चार्ट यूज कर सकते हैं। वो रियल टाइम भी चल सकता है और ईओडी भी चल सकता है। वो जो आपका नजदीक में है उसी को ही कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि कभी कोई तकलीफ होगा तो आपको वो सपोर्ट दे पाएंगे। नहीं तो अभी डिजिटल के जमाने में कहीं भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं।
तो अभी आपने आईटी तो बता ही दिया ना हमें कि आईटी के इवन म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक है, वो बहुत अच्छा है। और Exactly. दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन मैं बीच में ना थोड़ा मिस कर गया था, कनेक्ट जी गाइस, वो जो अभी आगे का फ्यूचर लग रहा है चार्ट के मुताबिक, वो क्या अपने को लग रहा है अगला 1 से 1.5 साल जो है? देखिए, मैं जिस हिसाब से चार्ट रीड कर रहा हूँ, बाजार अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, थोड़ा ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स में है। मैं ये बोल सकता हूँ एज पर द चार्ट मैं जो रीड किया हूँ, 2022 होगा द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एंड द फाइनल वेव विल कम 2023 एंड 24। तो दैट्स व्हाई द इन्वेस्टमेंट, मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2022 में मिलेगा, जो लोग मिस्ड आउट हो चुका है। टाइमिंग फॉर लिक्विड और डेट फंड इज गुड। आप इक्विटी में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखिए अभी, थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है बाजार आफ्टर बजट क्या रिएक्शन करेगा, क्योंकि ओवर आप अगर टाइमिंग देखेंगे कि बाजार ऑलरेडी 2020 से रैली कर रहा है, वो रैली 7500 से ऑलरेडी बाजार 1800 के प्लस चला गया। तो मेरा रीजन यही रहेगा, नीचे में 16,500 ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा, और बेस्ट वैल्यूएशन रहेगा 15,500, और ऊपर में रेंज ट्रेडिंग रहेगा 19,500। ऐसे नहीं सर, एसटीपी बेटर रहेगा ना? हाँ एग्जैक्ट, एसटीपी बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। हेलो। यस। हेलो। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप लोग इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं, बट क्या होता है जैसे अब आप लोग के गाइडेंस में हम लोग को किक मतलब मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, या आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे पेड या अनपेड जैसा भी है, बट वो हो नहीं पाता बॉस, वो हो नहीं पाता है। जैसे मैं एक चीज जैसे बता देता आपने सर आपने अपने जिंदगी में 20 साल में आपने पैसे बनाए, सपोज दैट 1 करोड़ रुपए, बट हमारे लिए 5 साल में बनना चाहिए ना सर। हम आपके गाइडेंस में आ रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है सर। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, एक ये जो क्वेश्चन है 5 साल में कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं एक आइडिया लिया। जरूर। देखिए, हम लोग को बनाने में पैसा अभी भी, आप जो बोल रहे हैं, अभी भी तकलीफ देता है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल वे में ज्यादा करता हूँ, और फंड का इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है फंड का आउटपुट क्या हो। आप इनपुट क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आप अगर 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं कोई 5 साल के अंदर, बाजार का जो सिचुएशन है, आपको इनपुट भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो हाँ, ये बात है कि हम लोग को लॉस ज्यादा झेलना पड़ा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट करते करते ज्यादा लॉस लगता है। लेकिन आप लोग को वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और हाँ, एक बात तो है कि कुछ भी पेड़ का पौधे लगाएंगे, वो चाहे कितना भी आप अच्छा खाना उसको दे दीजिए, पानी ज्यादा डालिए, लेकिन वो 5 दिन में वो फल नहीं आएगा, वो 5 साल में ही आएगा, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है वो स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ होगा, धीरे धीरे होगा। तो आप अगर सोचेंगे कि हम कोई एक्सपर्टाइज के पास चला गया और वहां से मेरे को अच्छा एक्सपर्टाइज सब कुछ मिलेगा, ये थोड़ा सा हो सकता है, सर कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट जैसे स्ट्रेटजीज हैं, आपने जिस स्ट्रेटजीज पे वर्क कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजीज पे हम भी वर्क करेंगे, या आपने हमें उसको दिया है, तो बट नेचुरल है ना कि हमें भी आपके अकॉर्डिंग, हमने जितना इनपुट डाला है उसके अकॉर्डिंग हम जनरेट होगा, बट हमको लॉस कम होगा, जनरेट ज्यादा होगा ना। एग्जैक्टली, वो तो होगा। आप घर में बैठ के देखिए, बट बहुत डिसिप्लिन रहिए, एकदम डिसिप्लिन रहिए। आप देखिए आपका ठीक ढंग से, क्योंकि देखिए, जब तक आप कोई सिस्टम को बिलीव नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर उसका बिलीव भी नहीं आएगा। पहले उस सिस्टम को बिलीव करने के लिए आपको उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, बैक टेस्ट कीजिए कि कितना बार ये सक्सेस हुआ है, कितना बार ये फेलियर हुआ है, तब जाके उसके ऊपर आपका बिलीव आएगा। तो थोड़ा सा फिर ये हो जाता है, जैसे अभी हम लोग म्यूचुअल फंड देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड में सेक्टर स्पेसिफिक हो नहीं पाता है। अभी हमने लार्ज कैप बेचना है तो हम लार्ज कैप बेचेंगे, उसमें आईटी का पोर्शन एक फंड मैनेजर अपना नॉर्मल रख रखा है, हमें आईटी का एक्सपोजर बढ़ाना है तो नहीं बढ़ा सकते, मेटल्स बढ़ाना है तो नहीं बढ़ा सकते। तो वहां पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमें सेक्टर स्पेसिफिक नहीं मिल पाता है प्रोडक्ट।
तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि फिर हम डायरेक्ट इक्विटी में जाएं, डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं तो लॉस ज्यादा होता है या लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्लाइंट बार बार हम मैनेज नहीं कर पाते, क्लाइंट का पैसा मैनेज नहीं कर पाते डायरेक्ट इक्विटी में। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंस नहीं होता है क्लाइंट के पास भी, और फिर हमें भी लगने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। देखिए पेशेंस तो रहना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बाजार का टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप अगर नीचे का वैल्यूएशन में बाजार को लेना चाहते हैं तो RSI फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। ये आपको फेलियर ज्यादा नहीं होने देंगे। फेलियर तो होंगे, देखिए विदाउट फेलियर तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ फेलियर कम होंगे, इतना हम बोल सकते हैं। And plus, in mutual fund also we have sectorial funds. IT funds is there, and then I think we all can work on that. आप उसको ध्यान दीजिए। अगर sector specific अपने को कोई रुझान मिल रहे हैं तो we can follow that. There are IT sector funds for all AMCs. ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो AMC में नहीं है, सब में। But it's a call. Any other questions we have? We can have 2 more questions or maybe 1 questions. Anyone else? नहीं है तब very good. Yeah, Chetan, IT, yeah, lot of people will have. Most of the AMCs like ICICI, Tata, both of their IT funds are doing extremely well. Even Aditya Birla, so they are doing extremely well. So good. Thank you so much. I think any other question, Manish ji? Manish. सर इनका YouTube चैनल मिल जाएगा? Yes, sir. Can you share the link of your channel? मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको अभी मेरे हाथ में नहीं है। Shantanu sir, one question from my side. Yes. Shantanu sir, now from in technical analyst, first आप पहले सेक्टर ढूंढते हो, फ्री कंपनीज ढूंढते हो या डायरेक्टली चार्टिंग पैटर्न कंपनी स्पेसिफिक देखते हो? एकदम कंपनी पैटर्न देखता हूँ। ठीक है, तो आप अब जैसे लास्ट 1 ईयर में अगर सपोज फाइनेंशियल सेक्टर भी लास्ट 6 मंथ में इतना तेज नहीं बढ़ रहा है, देयर इज अ स्लो डाउन, सो फर्स्ट यू पिक अप द सेक्टर एंड देन यू लुक फॉर द कंपनी। एब्सोल्युटली, बट फिर भी मैं देखता हूँ क्या, मैं इंडिविजुअल चार्ट को ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, क्योंकि हो सकता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा हो। जब हम लोग जब एक्सप्लोरेशन करते हैं, दैट मींस हम लोग जब स्टॉक सर्च करते हैं, उसमें कभी एक साथ में किसी सेक्टोरियल नेम आ जाता है, जैसे स्टेट बैंक, PNB, ये सब नाम आ रहा है, तभी जाके मैं सेक्टोरियल देखता हूँ कि सेक्टोरियल इंडिसेस कैसा है। ओके, सो सर ये स्ट्रेटजी, ओके सॉरी सर, तो ये स्ट्रेटजी राइट रहेगी कि मैं निफ्टी मोमेंटम 30 स्टॉक्स को ट्रैक करूं, बिकॉज़ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स में जो स्टॉक्स है, एंड देन वी कैन डू अ टेक्निकल ऑन दैट? एब्सोल्युटली, यू कैन। अच्छी स्ट्रैटेजी है। Okay, thanks sir. And I also agree with the same. So thank you so much. Any other last? Otherwise, maybe if Upinder or Chetan, any one of you can just give a vote of thanks to sir with whatever you have learned today. Any one of you, Upinder or Chetan, whoever is. Definitely, sir. Good morning, one and all. Thank you, Kanakji, for the opportunity. And once again, as Darshanji said, Dil se thank you, Shantanu ji. It was an amazing session. And most importantly, the final part, the simple things you have explained us, the 13-day DMA and the 26-day, and also why the 65-day RSI is to be looked after with the example and the series of events. That is fantastic, sir. I think this is going to help all of us, at least to start off with. And then, of course, with the guidance of Kanakji and you, we will also try to master it. But yes, to start initially with, and personally, one thing which I liked about it is why Fibonacci, you said, of course, there was a little voice thing, but why 0 + 1 and 1 + 2? And how you get to the 13th thing. I think that once you know the basics, it's very easy to go forward. So once again, from the whole group, VC group, thank you so much for this session, sir, and the knowledge sharing. Thank you so much. Thank you, Kanakji. Thank you so much. धन्यवाद, आप बुलाए। Thank you very much, sir. आप सब लोग को थैंक यू बोलता हूँ।
Bangalore, and यहाँ पे Upinder is from Hyderabad, somebody is from Kalka, somebody is from all different cities. Sir. Okay. Chetan has already given an applaud to you, sir. And boom, we all have liked the session. हम लोग सब when we like a session, we all write boom in the chat box. That's for you, sir. Thank you so much. Yes, thank you. So thank you so much. Looking forward to have some live sessions maybe in the coming soon, maybe next 2022 for sure with you. And thank you so much, sir. Thank you. Okay, bye.